Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So this video is very important because we already have result out for the stage 1, that is for the CBT mode. ठीक है, so this video is going to be very important, and before starting the video I request all of you कि if you are an eligible candidate for the interview, yesterday only I have provided one video related to interview, then this channel is very important for you, so don't forget to subscribe the channel for latest update related to the ICMR Scientist B examination for the non-medicos. Right, so without further delay, let's start the video. So what is the update here? So we are having the stage 1 result out. So what it is, what is the next step, when the interview will be there, and what are the things which you have to do now after your result is out. Right, so first of all, how you can check your result. Right, आप कैसे अपना result check कर सकते हैं? So firstly you have to log in with your respective ID plus password. Right, after login you will be able to see the results and you will have a PDF. You can see whether your roll number is there or not. If it is there, then you are qualified. If it is not there, you have not qualified the CBT. ठीक है, you have not qualified the CBT. Now what is next? So we are now having two candidates. ठीक है, we are having two candidates. First, whose roll number is mentioned in the CBT, it means they are qualified. ठीक है, they are qualified. It is very good. I want to congratulate all of those who have qualified the round 1. Now those who have not qualified, whose roll number is not mentioned in the list, so not to worry, this is not the last opportunity. This was not the last opportunity, right? You are having ample amount of opportunity waiting for you. You have to just find it out. So कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, नहीं हुआ कोई बात नहीं है. जिनका हुआ है उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उनके पास एक और मौका है. ठीक है, अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से और अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से वो अपना और बेस्ट एक राउंड में उन्हें देना होगा इंटरव्यू में. नाउ इससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ. सो वॉच टिल द एंड. राइट, सो these are some of the lines mentioned on the last of the PDF. ठीक है, जो PDF डाउनलोड हुआ है उसमें लास्ट में कुछ लाइंस मेंशन्ड है. सो एक एक करके मैं इनका मतलब बता देती हूँ. दिस इज ओनली अ लिस्ट ऑफ ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, नॉट द फाइनल रिजल्ट. यस, ऑफ कोर्स ये फाइनल नहीं है बिकॉज दिस इज ओनली रिजल्ट ऑफ द CBT कैंडिडेट, CBT क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जिन्होंने, यानी CBT एग्जामिनेशन भी जो आपका हुआ था, इट इज विदाउट एनी स्क्रूटिनी. ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट्स भी उसमें होंगे, नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स भी होंगे. राइट, सो दे हैव नॉट एट ऑल स्क्रीन दैट ओनली द एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव गिवन द CBT एग्जामिनेशन. सो वहां पे एक पैरामीटर, एक फिल्टर उन्हें लगाना पड़ेगा आगे इंटरव्यू राउंड पे बुलाने के लिए आपसे पहले. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4. व्हाट इट इज अबाउट? इट इज अबाउट, as per the advertisement, 5 times the number of vacancies for each post from among the applicants who have secured the minimum qualifying marks in CBT would be called for interview by ICMR New Delhi. ठीक है, list of candidates to be called for interview including further steps of recruitment will also be published by ICMR New Delhi. अब देखो, if you have observed the PDF, approximately 460 candidates are screened as per their minimum marks whatever they have led. ठीक है, सपोज 50% उन्होंने अगर मार्क्स डिसाइड किया था कि CBT में जितने बच्चों का 50% मार्क्स आएगा या 50 मार्क्स आएगा 100 में से, ठीक है, उनको वो स्क्रीन करेंगे. और उस मान लो कि इसमें 460 बच्चों को उन्होंने स्कैन किया है. ठीक है, नियर अबाउट 500 बच्चों को उन्होंने स्क्रीन किया है. तो क्या 500 सीट्स हमारे पास है? नहीं है. तो वहां पे इन्होंने क्या कर दिया है, ये लाइन मेंशन करी है कि 5 टाइम्स वो इंटरव्यू में बुलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 सीट्स होता हमारे पास, ठीक है, तो नियरली वो 50 कैंडिडेट्स को स्क्रीन करके आउट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स आफ्टर CBT रिजल्ट दे विल कॉल ओनली 50 कैंडिडेट्स. ठीक है, अब इन 50 में से टॉप 10 का सिलेक्शन हो जाएगा. सो ये क्राइटेरिया आपको याद रखना है कि ICMR अगेन एक रिजल्ट निकालेगा, अगेन एक लिस्ट निकालेगा जिसमें वो क्या बताएंगे, हु आर एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू. यानी कि यहाँ पे क्या बात आ जाती है, मेरिट की.
ठीक है, अब इसके पहले कुछ चीजें मैं और क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। सी, फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम द qualified list, from the qualified list they are going to screen further, ठीक है, further screening will be there. Now on what basis they will screen? Firstly, as I told, 5x merit बनेगा, ठीक है। 5x कैसे निकाला जाएगा? ऑफ कोर्स मेरिट के बेसिस पर टॉप मोस्ट जो स्कोर करेगा उसके अकॉर्डिंगली दे विल ओनली कॉल वॉट एवर बी दी सीट नंबर। लेट सपोज 25 है तो 25 टोटल आई एम टॉकिंग अबाउट UR, OBC, SC, ST एंड ऑल। सपोज 25 है तो 125 विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, राइट। सो ये तो पहला एंड द फोरमोस्ट क्राइटेरिया ये हो गया, यानी कि आपके रिटन एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स होने चाहिए तो ही इंश्योर होगा आपका सिलेक्शन फॉर द इंटरव्यू, राइट। तो अब इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ लेट मी क्लियर अदर पॉइंट्स। आफ्टर दैट दे विल ऑल्सो स्क्रीन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। एज दे हैव मेंशन ब्रॉडर सब्जेक्ट बायोमेडिकल साइंसेज एंड also they have provided the exact subject list who are eligible, but then also they will screen that whether it is as per their advertisement or not. वो एक बार फिर से कंफर्म करेंगे कि क्या आपका सब्जेक्ट जिसमें आपका मास्टर्स है वो लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो एक क्राइटेरिया ये हो जाएगा। आफ्टर दैट द अदर विल बी लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ही एसेंशियल एलिजिबिलिटी आ जाती है, ठीक है। एसेंशियल एलिजिबिलिटी में आपका क्या सब्जेक्ट था, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लस एसेंशियल एलिजिबिलिटी, ठीक है, ये बात हो गई। नाउ दे में ऑल्सो आस्क फॉर एक्सपीरियंस, यानी जो भी आपने अपना एप्लीकेशन प्रोसेस जो किया है उस टाइम पे जितनी चीजें अपलोड करी थी वो उसका प्रूफ आपसे मांग सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हो जाता है स्क्रीनिंग के बाद फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो कि ऑलरेडी रिक्रूटेड हैं कहीं पे, दे विल आस्क फॉर देयर NOCs, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, marksheets, degree, if you are claiming that you have any publication, so they will also demand that. So this is very very important. So on the basis of all of these, हो सकता है कि ये सारी चीज़ें वो बाद में भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा चांसेस हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल डू दिस वन, ठीक है। दे विल प्रिपेयर अगेन अ मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 460 कैंडिडेट्स बिकॉज दे कैन नॉट कॉल ऑल द 460s फॉर इंटरव्यू. दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल बिकॉज ओनली वी आर हैविंग 25 seats and they have mentioned in the advertisement that they will take 5x. So you can understand the importance of your marks in your written examination. Now after that, see, educational qualification will be checked, experience, NOC. After everything they will prepare one more list and then everything will be mentioned there, interview date, where it will be conducted and every such detail. So यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। नाउ आपको करना क्या है, ठीक है, करना क्या है आपको, start preparing for interview without any further delay. I will provide you video on a regular basis, ठीक है। So do watch the channel and don't forget to subscribe the channel because it will help you a lot. Now one more point which I want to discuss here is that I was like discussing this point since so long, जब सब लोगों ने क्या किया था, क्लेम करना स्टार्ट कर दिया था दैट सिलेबस में नहीं है, हम पिटिशन फाइल करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। उसका क्या हुआ, अब कुछ हुआ, उसका मतलब निकल के आया। सो आई वॉज जस्ट सेइंग दैट एट दैट टाइम ऑल्सो कि ये सब चीज़ें मैं ना पढ़ के अपने कामों में ध्यान दो, आगे चल के करो, सो यू विल बी एबल टू डू मच मोर गुड थिंग, ठीक है। सो पूरा फोकस इंटरव्यू पे ध्यान दो एंड अगेन डिसहार्टन नहीं होना है इन कैंडिडेट्स को, और इन कैंडिडेट्स को अब और जाके प्रिपरेशन करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। डोंट फॉरगेट टू शेयर द चैनल।